قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے، وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا اور ایک ہی مصرے میں سب کچھ کہہ دیا، عطا تو دیکھو میرے رب کی، عطا تو دیکھو میرے رب کی، کیا کوئی محبوب دیا کرتا ہے۔ اللہ نے تو اپنا محبوب ہی ہم کو عطا فرما دیا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پوری دنیا چاہے جیسا انسان ہو، چرند ہو پرند ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے، اس کا پیدا کرنے والا اس سے راضی ہو جائے، اس کو کھلانے والا اس سے راضی ہو جائے۔ شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، عیاش ہو، مکار ہو، سب کی منشا یہ کہ رب راضی ہو جائے، اور رب جس کو راضی کرنے میں لگا ہے وہ محبوب ہم کو عطا فرما دے گا۔ اور کیسا رب راضی کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ فرمائے گا محبوب کس چیز میں راضی ہوگے؟ تو میں کہوں گا میرے رب تو غفور الرحیم ہے، میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ میری رضا کے لیے میری امت کی بخشش فرمائے۔ محبوب بھی لاجواب اور محب کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ گزشتہ 3 جمعہ سے مسائل کی طرف گفتگو چل رہی تھی، اور مبارک بھائی نے مجھ کو بتایا کہ یہ اچھا بھی ہے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس سے جانکاری حاصل ہو رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی اور مزید مسائل کی طرف بات کریں گے تاکہ اور ہمارے ذہنوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں ہم ان سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عقیقے کے تعلق سے۔ عقیقہ کیا چیز ہے؟ لوگ زیادہ تر اس کو حقیقہ کہتے ہیں، لفظ حقیقہ نہیں ہے، عقیقہ ہے، شروع میں آ داخل ہوگا۔ جو لوگ انگلش پڑھے ہیں، ہندی پڑھے ہیں یا عربی پڑھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، شروع میں اے یا آ داخل ہوگا، عقیقہ کہیں گے، حقیقہ نہیں، ہاں نہیں، عقیقہ کہیں گے۔ اور یہ کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جو چیز فرض ہوتی ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے، یا جو چیز واجب ہوتی ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ ہو گیا چالو؟ جو چیز فرض یا واجب ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی چیز ہو تو یا تو سنت ہوتی ہے یا مستحب ہوتی ہے۔ تو عقیقہ کرنا نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے، لیکن سنت کو بھی ہلکا نہیں سمجھا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 100 شہیدوں کا۔ اب سنت کو زندہ کرنا کیا ہے؟
सुन्नत जिंदा होगी कैसे? देखो, एक सुन्नत तो बड़ी मशहूर और मारूफ होती है कि लोग करते हैं, जैसे नमाज में सुन्नतें पढ़ते हैं, या मिसबाक करना सुन्नत है, या दाढ़ी रखाना सुन्नत है। ये सुन्नत तो बड़ी मशहूर है। ऐसी सुन्नत कि जिसे लोगों ने भुला दिया हो, जिससे लोग वाकिफ न हो, मतलब जानते हो पर अनजान बने बैठे हो, उस पर अमल ना करते हो, और फिर कोई उस पर अमल करके इस बात का इजहार कर दे कि ये सुन्नत भी मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है, इस सुन्नत को जिंदा करना कहते हैं। जैसा अकीके का रिवाज नहीं है। अभी दौरे हाजिर में हुआ क्या है, लोग जानते तो हैं अकीका करना सुन्नत है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। अब से 10-5 साल के अंदर हम अगर गौर व फिक्र करें तो हालात ये हैं कि दूसरी कौमों का जो शेबा था वो हमने अपना लिया। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे की उम्र 1 साल हो जाए तो हमारे घरों में सालगिरह का, बर्थडे जिसको कहते हैं, उसका एहतमाम होता है, खूब जोरों शोर से होता है। गलियां सजाई जाती हैं, घर को सजाया जाता है, मिठाइयां भी बांटी जाती हैं, दावतें भी दी जाती हैं, दूर दराज से रिश्तेदार भी बुलाए जाते हैं कि मेरे बेटे या मेरी बेटी का सालगिरह का दिन है, उसकी उम्र 1 साल हो गई, तो लोग कई कई लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। बारात घर भी बुक करके फिर पार्टी होती है, तरह तरह के लजीज खाने और पीने की चीजें मुहैया कराई जाती हैं, तरह तरह के शरबत, कोल्ड ड्रिंक, तरह तरह की खाने बनाए जाते हैं, और बड़े मजमे को दावत देकर बर्थडे मनाया जाता है, सालगिरह। होता है कि नहीं होता है ऐसा? लोगों ने जो पैसा सुन्नत पे अदा करना था उसको बर्थडे पे खत्म कर दिया। अभी जल्द ही में मैंने किसी से सुना कि गांव में, आप ही नमाजियों में कोई नमाजी थे, उन्होंने मुझको बताया कि गांव में किसी ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया और उस जन्मदिन में उसने 1.5-2 लाख रुपए खर्च किए, 1000-1200 लोगों को दावत दी, पूरे गांव की दावत, दूर दराज से रिश्तेदार भी आए, मिलने वाले भी आए, और उसने बेहतरीन टेंट पेंट लगाकर, डीजे लगाकर, और फिर उसने बर्थडे मनाया, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाया, यूं कहें। लेकिन जब वो पैदा हुए बच्चे या बच्ची या बच्चा, तो ये सबने भुला दिया कि इनके लिए हमें क्या करना चाहिए था, और प्यारे नबी की सुन्नत अकीका है तो अकीका करना चाहिए था। मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जन्मदिन पे खर्च किए, अगर उसी जन्मदिन पर जन्मदिन की नियत ना करके, जन्मदिन की नियत ना करके अकीके की नियत कर लेता और जानवर खरीद कर ले आता, जानवर खरीद कर ले आता, लड़के की जानिब से 2 बकरे और लड़की की जानिब से 1 बकरी, हैसियत नहीं थी तो लड़के की जानिब से 1 बकरा भी हो सकता है, हैसियत नहीं है, मिसाल के तौर पर किसी इलाके में बकरा 20,000 का मिलता है और बकरी 10,000 में मिल जाती है, और वो नबी की प्यारी सुन्नत को अदा करना चाहता है, 10,000 रुपए की हैसियत है तो वो बकरी से भी कर सकता है लड़के की जानिब से। जब हैसियत ना हो, इस्लाम ने मजबूर नहीं किया, हालांकि जो तरीका है वो ये है कि लड़के की जानिब से 2 बकरे और लड़की की जानिब से 1 बकरी, लेकिन हैसियत ना हो तो 1 बकरा या 1 बकरी लड़के की जानिब से की जा सकती है, या लड़की ही है सिर्फ और उसके पास हैसियत भी है और उसको लगता है कि दावत में आने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, तो वो लड़की की जानिब से 2 बकरी या 2 बकरे करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो सालगिरह पर खर्च हुए, सुन्नत को भुला दिया, प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करता, 2 जानवर लेके आता, उनको ज़िबा करता और दावत लोगों को खिलाता, तो देखो लोग ये समझते कि शायद जन्मदिन मना रहा है और सुन्नत भी अदा हो जाती और सवाब भी मिलता। होता कि नहीं होता? लोग हर साल, 10 साल का बच्चा है तो 10 साल से 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं,
20 साल का है, आजकल तो बूढ़े बुढ़े भी जो है जन्मदिन मना रहे हैं, बूढ़े बुढ़े भी जन्मदिन मना रहे हैं। अकीका किसका हुआ किसी को मालूम नहीं। जितने लोग मस्जिद में जमा हैं, मुझे उम्मीद है कि 10 लोग भी नहीं होंगे जिनका अकीका हुआ होगा, पर जन्मदिन मनाने वाले सैकड़ों होंगे। हम में कितने होंगे जिन्होंने हमने अपने बच्चे अपने नहीं मनाए जन्मदिन, तो बच्चों के मना रहे हैं, लेकिन अकीका नहीं किया। इसी सुन्नत को जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलता है। इसी तरह की सुन्नत कि जिसको कौम भुला रही हो, लोगों ने अकीके को भुला दिया और कर क्या रहे, जन्मदिन मना रहे हैं। अब कोई जन्मदिन को छोड़कर अकीका करे तो इस पर अल्लाह सवाब अता फरमाए। लेकिन अकीके में भी गलत फहमी है लोगों को। लोग ये समझते हैं जब अकीका होगा, इसमें बहुत सारी गलत फहमी है लोगों को, कि लड़के की जानिब से 2 ही बकरे होंगे तभी मैं कर सकूंगा। मैंने बताया अगर हैसियत नहीं है तो 1 से भी हो जाएगा, 1 बकरी से भी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और गलत फहमी है, वो ये है कि अकीका करने का मतलब ये है बच्चे को गंजा करो और गली कूचों में बैंड बाजे से घुमाओ और मस्जिद तक दूल्हा बनाकर ले जाओ तो अकीका माना जाएगा। ये भी गलत फहमी है। कुछ लोगों की ये गलत फहमी है कि जो जानवर अकीके में ज़िबा हुआ है उसको दादा दादी नाना नानी ना खाएंगे। जो गलत फहमी है वो भी दूर कर ली जाए ना। दादा दादी नाना नानी नहीं खा सकते। देखें अकीका क्या है, जब बच्चा पैदा हुआ, लड़का हो या लड़की, अल्लाह ने आपको औलाद अता फरमाई। बहुत सारे लोग दुनिया में आपको मिलेंगे जिनके पास औलाद नहीं है। औलाद की खुशी क्या होती है उनसे पूछो जिन पर औलाद है, और औलाद ना मिले तो कैसा गम होता है उनसे पूछो जिन पर औलाद नहीं है। जिसकी अपनी औलाद है उससे पूछो औलाद की क्या खुशी होती है, और जिस पर नहीं है उससे पूछो कि अगर तेरे यहां औलाद हो जाए तो तू क्या करेगा। वो कहेगा मैं तो लाखों रुपए खर्च कर सकता हूं, मकान दे दूंगा, खेतों खलियान दे दूंगा, मेरे यहां औलाद पैदा हो जानी चाहिए। बड़ा जलील समझता है वो इंसान अपने आप को जिसके यहां औलाद पैदा नहीं होती है। दौरे हाजिर में तो औरतें ताने देती हैं, होता क्या नहीं? तवज्जो है ना हज़रात की? गलत फहमियां दूर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो होता यह है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो इंसान को बड़ी नेमत मिली अल्लाह की जानिब से। औलाद मिली तो बड़ी नेमत मिली कि नहीं मिली? पूरी दुनिया जमा कर लो, एक बच्चा तो क्या एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती। यह अल्लाह ही की जानिब से है, उसी का करम है, उसी का फजल है कि उसने हमें औलाद अता फरमाई। हाँ, तो जब अल्लाह ने औलाद अता फरमाई तो हम उसकी पैदाइश की खुशी के सिलसिले में कि अल्लाह तूने हमें औलाद दी है, तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। तो जो जानवर शुक्राने में ज़िबा किया जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जो जानवर बच्चे की पैदाइश पर खुशी से ज़िबा किया जाता है, उसी का नाम अकीका है। ना के गंजा कराना अकीका है, ना के बैंड बाजा बजाकर गली गली घुमाना, मस्जिद तक ले जाना अकीका है। जानवर ज़िबा हो गया, अकीका हो गया। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? नजराना मिला है तो मैं समझ रहा हूं समझ में आ रही है बात। बहुत सारी गलत फहमियां हमारी कौम में पाली हुई हैं। जानवर ज़िबा हो गया, अकीका हो गया। अब चाहे उसको दादा दादी खाएं, चाहे नाना नानी खाएं, जज़ाकल्लाह। मतलब बात अच्छे से समझ में आ रही है? कहो सुभान अल्लाह। चाहे दादा दादी खाएं, चाहे नाना नानी खाएं, चाहे पड़ोसी खाएं, चाहे गली वाले खाएं, चाहे रिश्तेदार खाएं, अकीका हो गया, जानवर ज़िबा हो गया। ये बात अलग है कि उनको नहीं खिलाना है। समझ गए ना बात इशारे में? उनको नहीं खिलाना, क्योंकि ये जानवर जब ज़िबा हुआ है तो ये गोश्त तबर्रुक है। अब इसका कोई मालिक नहीं है। अब इसको तो चाहे आप तकसीम कर दें, लोगों के घर घर पहुंचा दें, चाहे गरीबों को खिला दें, चाहे रिश्तेदारों को खिला दें, चाहे कुर्बानी की तरह हिस्से कर ले, जैसे 3 हिस्से करते हैं, चाहे जैसे कर ले, उनको न दें ना उनको खिलाए हैं। अगर कोई आपका ऐसा अजीज है, ऐसा कोई खास दोस्त है उस कौम का
कि आपको उस पर भरोसा है कि वो ये सब नहीं करता है, तो फिर आप खिला सकते हैं उसको। दे नहीं क्योंकि भरोसा नहीं, वो क्या कर ले। इनमें 3 क्वालिटी होती हैं, वो फिर कभी इंशाल्लाह इस पर बात होगी। तो फिर अगर ईमान वाला है तो कोई भी सही आप उसको खिला भी सकते हैं, उसको दे भी सकते हैं। दादा दादी से मुराद कुछ नहीं है। तो जो लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन पर पैसा ना खर्च करके वो अकीके पर पैसा खर्च करें। किस पर खर्च करें? और बेहतर यह है कि अकीका बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन किया जाए। कौन से दिन? बेहतर यह है। बाकी 7वें दिन ना कर सके तो जब जिंदगी में मयसर हो जाए तब कर लें, चाहे 1 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, चाहे 50 साल बाद। और गलतफहमियां मैं आपकी इसमें इंशाअल्लाह दूर करने की कोशिश करता हूं। अब 7वां दिन क्या होता है? हमारे यहाँ जब छठी होती है ना, बच्चे की पैदाइश होती है, तो 6 दिन के बाद लोग छठी मना लेते हैं। इस्लाम में, हमारी शरीयत में जो छठी के मामला बयान किया गया है वो ये है, छठी का जो मामला है कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ हो, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ हो, वो दिन पैदाइश का दोबारा लौट कर जब आए, उससे 1 दिन पहले का जो दिन है वो 7वां दिन है। मिसाल के तौर पर बारीकी से समझे, बिल्कुल तफसील से समझ लें। बच्चा पैदा हुआ जुमा के दिन। किस दिन? जुमा के दिन। अब दोबारा जब जुमा आएगा, उससे पहले वाला जो दिन होगा वो 7वां दिन होगा, जैसे जुमेरात का दिन। बात समझ में आ रही है? बच्चा पैदा हुआ सोमवार के दिन। अब 7वां दिन जब मंगल का दिन, बुध का दिन, जुमेरात का दिन, जुमा का दिन, शनिचर का दिन, फिर जो इतवार का दिन आएगा, जिसको रविवार भी लोग कहते हैं, बच्चा सोमवार के दिन हुआ तो रविवार का जो दिन है वो बच्चे की पैदाइश का 7वां दिन है। दोबारा वो दिन ना आए जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, उससे पहले वाला जो दिन है वो 7वां दिन कहलाएगा। औरतें भी सुन रही है मेरी बात तो वो भी समझ लें। अक्सर 6 दिन गिन लेते हैं बच्चे की पैदाइश से, जैसे जुमा, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, 7 दिन हो गए। आप गिन के देख लें। अगर बच्चा पैदा हुआ मंगल के दिन, मैं गिन लेता हूं, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार और पीर, 7 हो गए कि नहीं हो गए? आप इस तरह गिन लें, 7वें दिन। और इसका मामला यह है कि जब बच्चे की छठी मनाई जाए तो बच्चे के जो बाल हैं, अगर आपने मुंडाने हैं तो मुंडाकर, नहीं मुंडाने हैं तो नहीं मुंडाकर, उसके बालों के वजन के एतबार से अंदाजा कर लें कि बालों में कितना वजन होगा। उससे ज्यादा हो जाए कम नहीं, चांदी सदका की जाए। क्या किया जाए? चांदी। छठी में क्या होना चाहिए? चांदी सदका की जानी चाहिए। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, हैसियत है, तो इसी दिन अकीका भी कर दे। और अगर इस दिन नहीं कर सकते हैं तो जब जिंदगी में मयसर हो जाए तब आप अकीका कर दें। ये नहीं है आप बूढ़े हो गए। देखो गांव देहात में, खासकर लखनऊ का जो इलाका है, इन इलाकों में ये मामला है। ये करीब के जो एनसीआर के इलाके, दिल्ली के पड़ते हैं, इसमें मेहमान नवाजी थोड़ी पीछे है। लेकिन लखनऊ या आगे चले जाए, मैं किसी की अच्छाई या बुराई बयान नहीं कर रहा हूं, तो जितनी शादियां होती हैं, जितने प्रोग्राम होते हैं, अक्सर व बेशतर इन सब में बकरे का गोश्त ही इस्तेमाल होता है। इन इलाकों में भी अब तो होने लगा है, दिल्ली में भी अब होने लगा है। तो जब शादी में तुम्हें जानवर ही ज़िबा करने हैं तो उन्हीं जानवर पर अकीके की नियत कर लिया करो। बात समझ में आ गई? बारात आ रही है, 2 जानवर ज़िबा करने हैं तो अकीके के नाम से ज़िबा कर लो ना। अब किसी का भी ले लो, वालिद साहब का अकीका कर लो, बेटे का अकीका कर लो, बेटी का अकीका कर लो, अपनी बीबी का अकीका कर लो, अपनी वालिदा का अकीका कर लो। जानवर ज़िबा हो गया, अकीका हो गया, गोश्त खिलाओ बारात को। बात समझ में आ रही है? वलीमा होता है, लोग वलीमे में भी यही करते हैं कि जानवर ज़िबा करते हैं और गोश्त खिलाते हैं। उस पर भी आप अकीके की नियत कर सकते हो। हालांकि अकीके की दुआ भी है, अल्लाहुम्मा हादिही अकीका, और आगे भी अल्फाज है, आप सबको तो वो याद नहीं हो पाएगी, जो लोग इल्म वाले हैं वो याद कर लेते हैं। अकीके की दुआ भी है,
लेकिन होता यह है कि हर जगह दुआ पढ़ने वाला मौजूद नहीं। हालांकि मोबाइल का जमाना है, आप गूगल से दुआ निकाल लें फिर पढ़ लें। लेकिन अगर दुआ याद भी नहीं है, दिल में इरादा कर ले कि जानवर में अकीके का ज़िबा कर रहा हूं, और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा कर दे, इंशाअल्लाह अकीका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अकीका हो जाएगा। कोई भी दावत का आप इंतजाम करते हैं, चाहे सालगिरह के ताल्लुक से हो, चाहे तो आजकल तो लोग एनिवर्सरी भी मना रहे हैं, उसमें भी तगड़ी तगड़ी पार्टियां हो रही हैं, शादियों की सालगिरह मना रहे हैं, तो अकीका किया है कि नहीं, इस तरफ भी तो गौर व फिक्र करें। आप प्यारे नबी की बात को हल्के में ले रहे हैं। आओ, गूगल का जमाना है, अपना मोबाइल निकाल लेना जुमा के बाद और सर्च कर लेना दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन थे। क्या करेंगे आप? पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी कौन था, आप अपने अपने मोबाइल में चेक करना गूगल पर, तो कसम खुदा की वो गूगल बताएगा कि मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सर्च करके देख लें। गूगल तो हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है, या किसी मजहब से भी उसका ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया में बेहतरीन इंसान अगर गूगल बताएगा तो मेरे और आपके आका के बारे में बताएगा, जिनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। तो जब उन्होंने अकीके के ताल्लुक से बताया है और करके दिखाया है, तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। पैसा भी खर्च कर रहे हो और बर्बादी भी कर रहे हो, ये पैसा तो फजूल खर्च हो गया ना। सालगिरह के नाम पर दावत खिलाने का सवाब मिल सकता है, लेकिन वही दावत अगर प्यारे नबी की सुन्नत के नाम पर खिलाई जाए तो कितना सवाब मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये बात कि जैसे शादियों का प्रोग्राम या पार्टियों का प्रोग्राम होता है, तो अभी एक नौजवान ने मुझसे कहा था कि अक्सर व बेशतर ये हो रहा है। देखें, कोई भी बात मेरी जब हो तो आप कोई पर्सनल ना ले, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मिसाल को भी याद रखें। जो जैसा कर रहा है वो अपने लिए समझ भी ले कि हाँ ये क्या बात कही जा रही है। मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो ऐसा कर रहा होगा वो खुद समझ जाएगा। शादियों में, पार्टियों में, तकरीबों में, बारात घरों में होता ये है कि दावत तो एक परिवार को मिली और जाते हैं 2 या 3 परिवार। दावत मुझे मिली, मैं कह रहा हूं चलो सब लोग पड़ोस वाले, अपनी सहेलियों को लड़कियां ले जा रही हैं, औरतें अपने पड़ोसनों को लेकर के जा रही हैं। सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बगैर दावत के दावत खाने गया वो दावत के लिए चोर की तरह गया। कैसे गया? दावत तो मान लेते हैं मुबारक भाई की आई, मुबारक भाई गली के लोगों को ले गए, तो वो जो बगैर दावत के जा रहा है वो चोर की मानिंद है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो खा कर आ गया? फरमाया फिर वो ऐसे है जैसे डांका डाल कर आया हो। कैसा है? चोर और डाकू के हुक्म में है वो इंसान जो बगैर दावत के लोगों के यहाँ दावत में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे भाई अच्छे से कपड़े पहने, देखा बारात घर में बारात आई हुई है और जेंटलमैन बन के पहुंच गए। लड़की वाले सोच रहे हैं लड़के वालों की जानिब से होंगे, लड़के वाले सोच रहे हैं लड़की वालों की जानिब से होंगे। उन्होंने अच्छे से खाया और लोगों को धमकाते भी ऐसे जैसे यही यहाँ के मालिक हैं, और बस मुंह पहुंचार निकल गए। ऐसी दावत खाने वाला चोर और डाकू के हुक्म में है। किसके? ऊंचा बोला, चोर और डाकू के हुक्म में है। कई बार ये होता है कि हमारे घर दावत है पूरे घर की और मेहमान आ जाते हैं, खास मेहमान भी आ जाते हैं। अब घर में तो खाना नहीं बनना है और हम दावत में जाने हैं, तो हुक्म ये है शरीयत का कि जो साहिबे दावत है, दावत खिलाने वाला, उससे इजाजत ले लो कि मेरे घर फला साथ में आना चाहता है, 1 या 2 या 3 मैं लाऊं या ना लाऊं। अगर वो इजाजत दे दे तो खुशी खुशी, और अगर वो मना कर दे तब भी खुशी खुशी, क्योंकि वो मालिक है खाना खिलाने का। वो जो खाना खिला रहा है वो दावत देने का मालिक बना हुआ है ना दुनियावी एतबार से। तो वो अगर इजाजत दे दे तो अच्छा, ना दे तब भी अच्छा, बुरा ना मानो। और ये मामूल चल चुका है कि लोग एक की दावत में 4 लोग दावत खाने जा रहे हैं,
और उससे फिर परेशानियों का सामना होता है। किसी गरीब ने बेचारे ने 100 लोगों की दावत का इंतजाम किया, 250 लोग पहुंच गए, तो उसकी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? हाँ, उसके यहाँ परेशानी का सबब बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसी बुरी चीजों से बचो। और जब दावत में बगैर दावत के जाओ तो मेरी बात याद कर लेना कि अल्लाह के नबी की हदीस मैंने तुमको सुनाई कि जाने वाला चोर है, खाकर आने वाला डंका डालकर आने वाले की तरह है। कैसा है? तो जाएंगे बगैर दावत के? ऊंचा बोलो तो सही। अच्छा, इस फ्लोर वाले लोग तो मेरी बात को समझ रहे हैं, ऊपर के फ्लोर वाले शायद नहीं समझ रहे हो, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस तो सबके लिए है ना। ऐसी दावतों से बचा करो, ऐसी पार्टियों से बचा करो। और सुनो, ये जो निकाह है ना, ये सुन्नत है प्यारे नबी की, और ये इबादत भी है, ये इबादत भी है। जिसने निकाह कर लिया उसने अपने ईमान को तकमील कर लिया, मुकम्मल कर लिया। निकाह आधा ईमान है। जब ये इबादत है, जब ये इबादत है, नेकी का काम है, सवाब का काम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप नमाज पढ़ने आए और नमाज शुरू करने से पहले डीजे बजाएं तो कैसा रहेगा? क्या नमाज फायदे की होगी? हाँ, रोजा रखने से पहले नाच लो, पहले नाच लो, खूब हाथ पैर फेंक के, और फिर रोजा रखो, कोई फायदा होगा रोजे का? मस्जिद बनाओ और मस्जिद के दरवाजे पर डीजे बजाओ, कोई फायदा होगा? निकाह इबादत, नेकी का काम, सवाब का काम, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, और तुम नाच कर और डीजे बजा कर रहे हो, और फिर शादी के 1 महीना 2 महीना 4 महीने बाद कहते हो कि बड़ा झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा तो होगा ही, इबादत सही से नहीं हुई ना। मैं जो बता रहा हूं मिसाल देकर आपको, रोजा सही रखा ही नहीं, नाच कर रखा है ना। ये निकाह जो पढ़ाया गया इसमें गाजे बाजे और नाच गाने हुए हैं, तो बर्बादी तो होनी है। नेक काम में और शैतान को शरीक कर रहे हो। उधर इमाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह इस निकाह में बरकत अता फरमा, इधर दादी नाच रही है, उधर दादा नाच रहा है, तो बरकत होगी? शैतान शरीक होगा तो बरकत होगी। अपने बच्चों की शादियां उनका घर बसाने के लिए कर रहे हो या बर्बाद करने के लिए? समझो मेरी बात, अमल करो। प्यारे नबी की कोई बात झूठी नहीं हो सकती। मेरे आका ने फरमाया, जिन शादियों में गलत रस्म और रिवाज लाए जाते हो उन रिश्तों में खलल वाक़ होती है, क्योंकि शैतान शरीक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तौबा कर लो ऐसी हर पार्टी से, ऐसी हर शादी से, क्या हमें नहीं करना है? कर लिया, तौबा कर लो कि पीछे जो हो गया वो हो गया। तौबा करेंगे तो अल्लाह गफूर रहीम है, इंशाअल्लाह वो तौबा को कबूल फरमा लेगा है इंशाअल्लाह। अपने बच्चों का घर बसा रहे हो तो तरीके से बसाओ, तरीके से उनके निकाह में अदायगी करो, अदब का लिहाज रखो कि निकाह हो रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह को इतना आसान कर लो कि लोगों को जिना करना दुश्वार हो जाए। आज जिना करना लोगों को आसान हो रहा है, निकाह करना दुश्वार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने शादियों में इतने खर्चात बढ़ा दिए हैं, इतनी फजूल खर्ची बढ़ा दी है कि हर बाप अपनी बेटी को रुखसत करने से पहले कई कई रातें सोता नहीं है। कहां से दहेज लाऊं, कहां से पैसा लाऊं, कहां से गाड़ी लाऊं, कहां से बारात घर लाऊं, कहां से तरह तरह के खाने लाऊं। हमने मुश्किल कर दिया है निकाह को। प्यारे नबी की अजमत तुम्हारे सीनों में अगर बाकी है, उनसे मोहब्बत रखते हो, उनसे रखते हो, तो निकाह को इतना आसान बना लो कि हर बेटी अपने घर में ये ना सोचे मेरे बाप परेशान है, हर बाप भी ये सोच रहा हो कि मेरे नबी ने अपनी उम्मत को बेहतरीन सबक दिया है कि लोगों ने निकाह को आसान कर दिया है। गलत फहमियों से बचो। एक और बात बता देता हूं, हम किसी के घर दाखिल होते हैं, पहला हुक्म यह है कि इजाजत लेकर दाखिल हो। क्या लेकर दाखिल हो? इजाजत लेकर। और कहे मैं फला बिन फला हूं, अपना नाम और अपने बाप का नाम भी पुकारा करें, मैं वो हूं। अब घर के अंदर साहिब खाना जो है वो चाहे तो इजाजत दे और चाहे ना इजाजत दे। वो इजाजत दे दें तो दाखिल हो जाए, इजाजत ना दे, या तब बता रहा हूं घरों में दाखिल होने का ये जो मामला चला है ना कि 80 साल का बुड्ढा भी बगैर खांसे मठारे और बगैर इजाजत के दाखिल हो गया और बेपर्दगी हो जाती है। हुक्म ये है कि इजाजत लें,
इजाजत मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तब भी अच्छी बात। उसके घर में कोई मामला चल रहा हो सकता है जिसकी वजह से इजाजत न दी हो। फिर दूसरी बात यह कि कई बार हम घर में किसी के या किसी के यहाँ पहुंच जाते हैं, वो खाना खा रहा होता है, वो कहता है आओ भाई खाने में शरीक हो जाओ, तो हम ये कहते हुए नजर आते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कम लोग गर्दन हिला रहे हैं, कई इमाम साहब ये ना देख ले कि हम भी गलत कर रहे हैं। देखो गलत कर रहे हो उससे बचकर सही करें, इसीलिए तो बातें बताई जा रही हैं। ये मत कहा करो कि बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह पढ़ना जो खाना खा रहा है उसकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? बगैर बिस्मिल्लाह के जो खाना खाया जाता है, जो अशिया पी जाती है, उसमें शैतान शरीक हो जाता है। तो बगैर बिस्मिल्लाह के तो ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तो ये खाने और पीने वाले की जिम्मेदारी है। आप जब गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसने कहा खाना खा लो, तो उसने मतलब हमारे साथ एहसान करने की कोशिश की है, भलाई करने की कोशिश की है। खाना खिलाना भलाई करना ही तो है, एहसान करना ही तो है, हुस्न सुलूक ही में तो ये आता है। अब वो ये चाहता है कि आपको खाना खिलाए, लेकिन आपको ये चाहिए था कि जब वो आपके साथ भलाई कर रहा है तो आप उसको दुआएं दें, उसको दुआएं दें। तो आप ये ना कहें बिस्मिल्लाह पढ़ो, आप ये कहें बारकल्लाह। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऊंचा बोलो ताकि याद हो जाए। अब अगर कहीं गए आप और वो खाना खा रहा हो, आपसे कह दे खाना खा लो, तो आप क्या कहेंगे? सब लोगों को याद हो गई ना? इसका मतलब है अल्लाह तुमको मुबारक करे, अल्लाह इसमें बरकत दे जो तुम खा रहे हो। लेकिन अक्सर लोग झूठ बोलते हैं। एक हदीस सुनाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भूख और झूठ को एक जगह जमा ना करो। भूख और झूठ को एक जगह जमा ना करो। मतलब क्या है? बहुत सारे लोग भूखे होते हैं। हम खाना खा रहे थे, भूखा आदमी आया, हमने कहा खा लो, कहने लगा मैं खा कर आया हूं, आप खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो देखो, एक तो वो भूखा है और दूसरा उसने झूठ बोला है। दोनों चीजें कर ली ना उसने। एक तो वो भूखा है, दूसरा उसने झूठ बोला है मैं खा कर आ गया हूं। नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहली बात तो ये कि जो कह रहा है खाना खा लो, उसके दिल में इरादा हो कि मैं खाना खिलाऊंगा, उसके दिल में इरादा हो, सिर्फ टोकना मकसद ना हो। और दूसरा ये कि जिससे कह रहा है अगर वो खाकर आया है तो कोई बात नहीं, अगर वो ना खाकर आया है तो या तो वो ये कह दे तुम खाओ मैं नहीं खाना चाहता, ये ना कहे मैं खाकर आया हूं, झूठ से बच जाएगा। या फिर वो खा ले। बात समझ में आ रही है? दोनों गलत करते हैं। एक तो वो गलत करता है जो सिर्फ टोकता है, और एक वो गलत करता है जो झूठ भी बोलता है और भूख को भी छुपा लेता है। लिहाजा उसको चाहिए जब कहे, जब खिलाने का इरादा हो, और उसको चाहिए कि जो बात सच है वही उसको कह देनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो जब आपसे कोई खाने को कहे